Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Okay, in this particular video, first of all I will take your question which I have left for the discussion. Then after I will take the new topic. First of all I will take the question of that side I am solving. After that I will take the new topic. So I have done perhaps one question. I left some of them. Okay, exercise 1D. I was solving exercise 1D and I have solved one question, that was the question number 3. Today I will take question number 4. Question number 4 is given: divide the difference of 15 by 8 and 12 by 16 by their difference. By their product. Question given: divide the difference of 15 by 8 and 12 by 16. क्वेश्चन कह रहा है कि 15 by 8 और 12 by 16 को, ठीक है, कर रहा है क्वेश्चन डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 15 by 8 and 12 by 16. 15 by 8 और 12 by 16 की डिफरेंस को डिवाइड करो, किसमें से? बाय द प्रोडक्ट. किससे डिवाइड करना है? उनके प्रोडक्ट से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ दिस टू रेशनल नंबर एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट प्रोडक्ट एंड देन विल सॉल्व देम. So first step is calculation of difference. So it will be 15 by 8 minus 12 by 16. Okay. LCM will be 16. LCM of 8 and 16 will be 16. 8 divides 16 for 2 times. So 15 2 is 30. 16 divide 16 one time. That will 12 ones are 12. It will give 18 by 16. Solve, simplify it, divide it by 2. It will be 9 and it will be 8. So difference is 9 by 8. Now calculate product. Product of 15 by 8 and 12 by 16. That will be 15 by 8 into 12 by 16. Cancel out 12 and 16. It will be cancelled out by 4 for 3 times. It will for 4 times. Okay. Now multiply 15 with the 3 and 8 with 4. 15 3 are 45. 8 4 are 32. Okay. So we have calculated difference as well as product. Okay, and question is given: divide the difference of 15 by 8 and 12 by 16 by their product. क्वेश्चन यह दिया था कि हमें डिफरेंस को प्रोडक्ट से डिवाइड करना है, तो हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया एंड इट कम 9 by 8. वी आल्सो कैलकुलेटेड प्रोडक्ट एंड इट इज 45 by 32. नाउ डिवाइड, and what have to divide? 9 by 8 divided by 45 by 32. As you know, during the process of division, we change the division symbol to multiplication and make the reciprocal of second rational number. डिवीजन के दौरान जो सिंबल होता है निगेटिव का, जो सिंबल होता है डिवीजन का, उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और जो बाद में रेशनल नंबर आता है उसको हम इनवर्स कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल करते हैं. नाउ स्टार्ट टू कैंसिल आउट. 8 1s are 8, 8 4s are 32, 9 1s are 9, 9 5s are 45, and it will give 4 by 5, and that will be the answer. Okay, I now am going to revise it once again. Question is the divide the difference of 15 by 8 and 12 by 16 by the product.
क्वेश्चन यह दे रखा है कि डिवाइड करना है किसे, द डिफरेंस ऑफ 15/8 एंड 12/16, इनके डिफरेंस को डिवाइड करना है, वो भी किससे, बाय द प्रोडक्ट, इन्हीं के प्रोडक्ट से। मतलब पहले इनका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे और उसके बाद प्रोडक्ट, और फिर डिफरेंस को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दोगे। तो फर्स्ट कैलकुलेट द डिफरेंस, डिफरेंस विल बी 9/8, then calculate the product will 45/32, now divide 9/8 by 45/32 and it will give 4/5. Okay, I am going to solve last question according to me। आप एक्सरसाइज 1D का लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर दो, मतलब और क्वेश्चन है बट आई थिंक दे कैन इजीली बी सॉल्व बाय यू। आई थिंक वन क्वेश्चन may be tough for you, so I am going to solve that particular question. Question given, I think it is question number 5, by what number rational number should be divide 22/7 so as to get the number mass 11/24. Okay, the question is given, by what rational number should be divide 22/7, 22/7 को किस रेशनल नंबर से हम डिवाइड करें, so as to get, ताकि हमें मिल सके, या we get, हम पा सकते हैं क्या चीज, द नंबर, कौन सा, माइनस 11/24, मीन्स 22/7 को किस नंबर से हम डिवाइड करें ताकि हमें माइनस 11/24 मिल सके। सॉल्यूशन, तो हम करते क्या है, सपोज कर लेते हैं, लेट द required rational number be x। सपोज दैट कि जो रेशनल नंबर हमें चाहिए वो क्या है, x है। according to question is given, by what rational number should be divide 22/7, 22/7 किससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, या 22/7 को किससे डिवाइड करना चाहिए, तो हमने कहा क्या क्या, x से, तो 22/7 को हम x से डिवाइड कर देते हैं, एंड द नंबर विल बी माइनस 11/24। ओके, नाउ 22/7 चेंज नेगेटिव डिवीजन सिंबल इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड मेक इनवर्स ऑफ x, दैट इज 1/x। हम करते ही हैं कि डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और साथ ही साथ यह जो दिया x उसका रेसिप्रोकल करते हैं, मींस 1/x एंड इट विल बिकम माइनस 11/24। ओके, नाउ मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मींस लीव 1/x here and now transfer this given rational number to opposite side and it will become minus 11/24 and get cross multiplied as 7/22। हम करते क्या, 1/x पे छोड़ देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, और जब उधर ले जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड by 11 minus 11 time 2 time, now there is no number that can be cancelled out, so make the product of numerator to numerator, denominator to denominator, and it will give 11 7s are 77 minus and denominator 24 to the 48,
This is the answer of 1 by x, but we consider rational number x. Okay, here the answer is for 1 by x, but we have considered rational number, or we have to find out rational number x. So make the reciprocal of 1 by x, that is x. If we are making reciprocal of left side, so we should also make reciprocal of right side, so that value remain constant. हमें 1 by x की वैल्यू दिया है, जबकि चाहिए क्या x की वैल्यू. सो हम करते क्या, 1 by x की वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं. जैसे रेसिप्रोकल करेंगे लेफ्ट साइड का, हमें राइट साइड का भी करना पड़ेगा, एंड इट विल गिव -48 by 77, and that will be the answer. Okay, now once again I am repeating the question. Question is given by what rational number should be divided 22 by 7. 22 by 7 को किस रेशनल नंबर से डिवाइड करें so as to get, ताकि हमें मिल सके या पा सकें द नंबर -11 by 24. -11 by 24 को पाने के लिए हम 22 by 7 को किससे डिवाइड करें. तो हमने किया क्या, लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बी x. वी डोंट नो एक्चुअली द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, सो वी अज्यूम इट. हमें एक्चुअली पता नहीं है कि जो रेशनल नंबर चाहिए उसकी वैल्यू क्या है, तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, एंड वी अज्यूम एट x. हमने क्या माना उसे, x माना. सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 22 by 7 divided by x give -11 by 24, and after that make the calculation. It will give to it. इसका 1 करना भाई, 11 से 1 टाइम का कैंसिल होगा. ठीक है, मेक हियर करेक्शन. 11 से डिवाइड 1 टाइम और 2 टाइम बाय मिस्टेक कुछ हो गया है. ओके, उसको करेक्शन आप कर लेना. Next topic is to find rational number between two given rational number. To find rational numbers between two rational numbers. दो रेशनल नंबर में दिए रहेंगे और उनके बीच में हमें रेशनल नंबर बताना रहता है. ठीक है, तो कंडीशन कई टाइप का आती है और कई मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं. क्लियर. फर्स्ट, अगर इफ इट आस्किंग फॉर जस्ट वन रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर को करना है, तो इसका मेथड नॉर्मल सा लगता है. ठीक है, 1 2 3 इतना अगर करना है तो नॉर्मली अलग मेथड करते हैं. ठीक है, वो मीन का रूल होता है. अगर ग्रेट नंबर का निकालना है तो हम करते हैं. ठीक है, इफ क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर जस्ट 1 or 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, देन वी यूज स्पेशली मीन फार्मूला. If it is asking for more than 3 4 5 6 like this type of rational number, so we take a different method for the calculation of those rational number between two given rational number. अगर हमें 1 2 के लगभग पूछता है रेशनल नंबर, तो हम मीन का फार्मूला यूज कर देते हैं और हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं. बट इफ इट इज आस्किंग फॉर more than 2 3 4 5 like this,
टाइप ऑफ रेशनल नंबर, सो वी यूज ए डिफरेंट मेथड, हम एक डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक इंटीजर, देन आफ्टर आई विल टेक द रेशनल नंबर, हाउ वी कैलकुलेट देम इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर एंड आफ्टर दैट, ओके। ठीक है, अगर हमें सपोज कर लो कि दो नंबर दिया हो, 4 और 6 दिया हो, और हमसे कह रहा हो कि गिव ए नंबर, ओके, जस्ट आस्किंग गिव ए नंबर, नॉट ए टाइप स्पेशल नंबर, गिव ए नंबर बिटवीन 4 and 6, 4 और 6 के बीच में एक नंबर बताओ, ओके, तो जस्ट वन नंबर बताना है, ठीक है। अगर वन नंबर बताना है तो हम मीन का रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, और मीन के हिसाब से क्या होगा कि दोनों का हम ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी दो नंबर के बीच में चाहिए उन दोनों को ऐड करते हैं, 2 से क्या करते हैं डिवाइड, 4 6 10/2, that will be 5. If it is asking for give a rational number between 4 and 5, sorry, give a number between 4 and 5, so what we do, just add them and divide by 2, 4 5 9, 9/2, that is 4.5, and we know that 4.5 lies between 4 and 5, 4 and 5 lies between 4 and 5, so if it is asking for just one rational number, then in that particular condition we make the average, or you may take the mean, or we first sum of the given rational number then divide them with the 2. अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक रेशनल नंबर पूछता है तो हम जो भी रेशनल नंबर दिया होता है उसको आपस में ऐड करते हैं और 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड, क्लियर, क्योंकि मीन में भी ये होता है कि जब हम दो नंबर का मीन करते हैं तो दोनों का ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, और उसमें भी रूल अप्लाई करना है कि दोनों रेशनल नंबर को ऐड करोगे फिर 2 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल। Example is given, find a rational number between, find a rational number between mass 4/5 and 1/7, mass 4/5 and 1/7. It is asking for find a rational number between mass 4/5 and 1/7. हमें इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। इसके कई मेथड हैं करने की, ठीक है। एक पूछ रहा है कि ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर दो, फिर क्या कर दो सबट्रैक्ट कर दो, और सॉरी 2 से डिवाइड कर दो, यानी हम क्या करेंगे वन रेशनल नंबर between mass 5/4 and 1/7 equal to, first add both this rational number means mass 4/5 plus 1/7, then divide the sum by 2, पहले इन दोनों को ऐड करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे। अब देखो क्या करोगे, नाउ टेक एलसीएम, mass 5/4 plus 1/7, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 28, एंड होल डिवाइड बाई 2, पूरे को हम 2 से डिवाइड किए रहेंगे, ठीक है। 1 सेकंड अगर दिख नहीं रहा तो ऊपर लिखना पड़ेगा, अब क्या करोगे डिवाइड 28 बाई 4, 28 को 4 से डिवाइड करो, it will divide for 7 times, 7 5 जा 35 plus it will divide it for 4 times, 4 1s are 4. Now add them, the addition will give minus 31 by 28 whole by 2. रूल यह होता है किसको हम 2/1 लिख सकते हैं, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ में होता है, सेकेंड का थर्ड में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में,
या इसको चाहो तो एक और तरीका, पर इसको समझ लो कि माइनस 31 इंटू 1/28 इंटू 2, दैट इज माइनस 31/56, and this will be a rational number which will come between minus 5/4 and 1/7. माइनस 31/56 ऐसा रेशनल नंबर है जो कि माइनस 4/5 और 1/7 के बीच में बिलोंग करेगा। तो जहां भी हमें एक रेशनल नंबर पूछता है हम सिंपली करते क्या है, ठीक है, हम सिंपली करते क्या है कि जो भी रेशनल नंबर दिया होता है उसको ऐड करते हैं और एट लास्ट वी डिवाइड इट बाय 2। हम ऐड करते हैं और पूरे के सम को 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमने ये कहा कि उसको चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, माइनस 31/28 होल डिवाइड बाय 2, सो इट कैन बी राइट डाउन एज माइनस 31/28 डिवाइड बाय 2। अब रूल के हिसाब से अगर देखा जाए जो मल्टीप्लाइंग चेंज होगा it will become inverse 1/2. Now multiply it, minus 31/50. ओके, अगर इसको सीक्वेंस के हिसाब से लिखें तो होगा क्या, माइनस 5/4 लेसर देन माइनस 31/56 लेसर देन 1/7। मतलब माइनस 31/56 माइनस 5/4 से तो बड़ा है, लेकिन 1/7 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ध्यान ये रखोगे जहां भी क्वेश्चन में एक टाइप का रेशनल नंबर पूछता है, एक रेशनल नंबर पूछता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी रेशनल नंबर दिया होता है उसको आपस में ऐड करते हैं और पूरे के सम को 2 से डिवाइड कर देते हैं। Next question is given, find two rational number between -6 and 7/4. Find two rational number between -6 and 7/4. क्लियर? इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा छोटा एक एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि छोटा एग्जांपल अगर समझे रहेंगे तो हमारा आप समझ सकते हैं इसको किस पैटर्न पे कर रहे हैं। सो इफ इट आस्किंग फॉर कैलकुलेट टू नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 दो नंबर हैं, इनके बीच में दो नंबर हमें बताने हैं। ओके, सो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी 2 + 3/2, दैट इज 5/2, दैट इज 2. ओके, अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या होगा, पहले 2 आएगा, फिर 2.5 आएगा और फिर क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर? अब हमसे क्या करा है कि नेक्स्ट एक और बताना है रेशनल नंबर, सर एक नंबर और बताना है, इसके बीच रेशनल नंबर नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, एक नंबर और बताना है। तो इसको करने के पीछे दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को एक साथ लो या इन दोनों को एक साथ लो, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। हमने इसको और इसको लिया, इसके बीच में ये आया, अब यह और ये एक साथ या यह और यह एक साथ। जब आप करोगे तो हो जाएगा 2 + 2.5 सेकेंड के लिए, सेकेंड नंबर के लिए 2 + 2.5/2, दैट इज 4.5/2, और जब इसको डिवाइड करो तो इट विल गिव 2.25, जो कि 2 और 2.5 के बीच में आएगा 2.25। अगर आप चाहो इसको भी ले सकते हो, 2.5 + 3/2, दैट इज 5.5/2, दैट इज 2.75, तो 2.75 इसके बीच में आएगा। तो यू आर फ्री, first we have to add two rational number, then divide the sum by 2. After that we are free to take any two pair for the calculation of next rational number. अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास दो नंबर थे, तो पहला
नंबर उनके बीच में कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली ऐड करना था, 2 से डिवाइड करना था। लेकिन जब सेकेंड नंबर हमें कैलकुलेट करना था तो हमारे सामने दो ऑप्शन आए थे, किसी भी दो पेयर को एक साथ ले सकते थे। ठीक वैसे रेशनल नंबर में होगा। अगर हमसे पूछा है दो रेशनल नंबर तो हमारा काम यह रहेगा कि पहले हम फर्स्ट नंबर के लिए, फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए हम करेंगे क्या, पहले उनको ऐड करेंगे और वैल्यू क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 6/1 हो जाएगा, एलसीएम लोगे इसका, अपॉन 2 तो पहले रहेगा, पूरे डिवाइड करता है, इसके एलसीएम हो जाएगा 4, 6 1 डिवाइड 4 for 4 टाइम, दैट विल गिव -24 प्लस 7। ओके, अगर ध्यान दोगे तो ये हमारा क्या है निगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव है। जब भी सॉल्व हुआ था माइनस क्या रहेगा, इट विल बिकम -17/4 होल डिवाइड बाय 2। जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, जैसे सॉल्व करते हो जाएगा 17 बाई कितना 8। अगर मैं लिखता हूं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, -6 आएगा, -6 के बाद -17/8 और उसके बाद 7/4। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों को एक साथ लें या इसको एक साथ लें, और दोनों में से कोई भी एक लोगे तो आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं रेशनल नंबर के, मींस देयर आर इनफाइनाइट चांसेस ऑफ गेटिंग डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में हम अनंत इनफाइनाइट जिसकी काउंटिंग ना कर सकें इतने रेशनल नंबर आ सकते हैं। इफ ए स्टूडेंट हैव टेकन right step or right method, and if it answer is not matching with other student, it does not matter that he has done wrong question. क्लियर? मैंने यह कहा कि अगर कोई स्टूडेंट सही मेथड अप्लाई करता है और उसका आंसर किसी दूसरे स्टूडेंट से नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये कहीं नहीं होता है कि उसका आंसर गलत है, क्योंकि होता यह है कि जैसा मैंने बोला कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं रेशनल नंबर के, तो सिंपल सी बात है उसने कोई एक रेशनल नंबर उसमें से लिखा होगा। अगर स्टेप सही है, स्टेप नहीं कर सकते हैं, मेथड सही है कैलकुलेशन ऑफ रेशनल नंबर के, तो इसका भले आंसर दूसरे स्टूडेंट से ना मैच करता हो फिर भी आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि एक ही रेशनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम कई मेथड अप्लाई कर सकते हैं और उसमें से स्टूडेंट जो भी अप्लाई करते अगर सही अप्लाई किया है आंसर भले डिफरेंट है दूसरे स्टूडेंट से फिर भी आंसर उसका करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो कोई स्टूडेंट अगर अलग मेथड यूज करता है कोई अलग मेथड यूज करता है, अगर दोनों के स्टेप सही हैं और आंसर नहीं मैच कर रहे हैं तो कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि नहीं मेरा आंसर गलत है। अगर प्रोसीजर सही है, मेथड सही अप्लाई किया हो तो आंसर डिफरेंट आने के चांसेस 100% बनते हैं रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैलकुलेट करते वक्त। ओके, जैसा कि अगर कोई स्टूडेंट इनके बीच का निकालता है रेशनल नंबर और कोई इसके बीच का, तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि जो इसके बीच का निकाला वो सही क्या है गलत, या इसके बीच का जो निकाला वो सही है और ये गलत क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ द स्टूडेंट आर क्वाइट राइट, दोनों स्टूडेंट पूरी तरह सही है। अगर सेकेंड रेशनल नंबर की बात करता हूं, इट विल -6 प्लस -17/8 होल डिवाइड बाई 2। हमें दो रेशनल नंबर को ऐड करना है फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमें अब किसके बीच में निकालना, -6 और -17/8 के। सो -6 के साथ -17/8 ऐड कर दिए और पूरे वैल्यू को 2 से डिवाइड। अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -6 प्लस -17/8 होल डिवाइड बाई 2। अब क्या करो, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना जाएगा 8। ओके, इसके अपान 1 कर लो, ये कितने टाइम डिवाइड करेगा 8 टाइम, 8 6 जा 48 -48, और ये कितने टाइम डिवाइड करेगा 1 टाइम, 8 1 सा 8 1 टाइम, सो इट विल -17। अगर केयर करोगे तो दोनों का सिंबल सेम है तो बोथ ऑफ देम विल बी एडेड, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब आप ऐड करोगे इट विल गिव, आई होप
-65/8 होल डिवाइड बाई 2। अगर आप इसको करते हो -65 बाई क्या रहेगा 16। ये हमारा अगला आ गया। हमें 2 चाहिए था, हमने 2 कैलकुलेट कर लिया और आंसर क्या रहेंगे -65/16 आफ्टर 17/8 तो फिर 7/4। और पूछेगा इस दोनों के बीच का निकाल दो, या इनके बीच का या इनके बीच का, जैसे तुम कैलकुलेट करना चाहोगे वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा जाता है। अगर हमें 10 या 15 कैलकुलेट करने को कह दे और हम यह मेथड अप्लाई करेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो सिंपल सी बात है कि उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो वी हैव टू टेक अ डिफरेंट स्टेप और मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द रेशनल नंबर बिटवीन 2 डिफरेंट रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें ज्यादा रेशनल नंबर पूछता है तो इस मेथड का अप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि इसको अप्लाई करना मतलब टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ज्यादा टाइम लगेगा और एग्जाम वगैरह में अगर क्वेश्चन आते हैं चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन आते ही हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सॉल्व करने में टाइम जाने चलते पेपर के बाकी सब क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is find 6 rational number between 1/5 and 1/3. Find 6 rational number between 1/5 and 1/3. ओके, 1/5 और 1/3 के बीच में कितना चाहिए 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तो पहला काम ये होता है कि हम उसके डिनोमिनेटर को सेम कर लें, ठीक है, और इसके लिए क्या लेंगे एलसीएम। तो कैलकुलेशन का पहला मेथड हो जाएगा क्या डिनोमिनेटर सेम करना, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/3 एलसीएम कितना होगा 15। ये कितने टाइम रखेगा 3 टाइम 3 प्लस नहीं करते हैं ऐसे रखते हैं, और ये कितना देगा 5 मींस इट कैन बी रिटन एज 3/15 एंड 5/50। ये क्या हो गए लाइक फ्रैक्शन की तरह डिनोमिनेटर सेम हो गए। अगर इनके बीच में देखा जाए तो एक रेशनल नंबर और आता है वो क्या है 4/5। 4/5 वैसे बनाना चाहे तो अनफाइनाइट इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो 3/15 के बाद 4/15 फिर 5/15 डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब ये आया कि जितने भी आएंगे अब उनके बीच में इतना ही होता जाएगा। क्लियर। अब करते क्या है कि दोनों रेशनल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उनके बीच में इतना गैप आ सके कि 6 रेशनल नंबर हम पा सकें। ठीक है, 6 रेशनल नंबर क्या कर सकें पा सकें। तो नॉर्मली करते क्या जो रेशनल नंबर मुझसे पूछता है जितना उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन हमें जाएगा बार बार इधर ट्रायल देखने, मतलब एक नंबर लिए मल्टीप्लाई किए नहीं आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, फिर आगे करना पड़ेगा। और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो इसको क्या बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब हम क्वेश्चन क्या करते हैं एक एजम्पशन अनुमान पे करते हैं गैसिंग करके कि नहीं ये आंसर होना चाहिए। अगर हम पुट करते हैं अगर आंसर नहीं सही आया तो सो दैट हमें करना क्या होगा फिर नया मेथड अप्लाई करना होगा, और नया मेथड अप्लाई करने का मतलब ये क्या होगा कि टाइम कंज्यूम करेगा। इसलिए सिंपली करते क्या है जितना हमसे नंबर पूछता है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किसी और का भी करे हुए और उनके बीच में इतना आ जाए तो अभी सही है, क्लियर, वो नहीं गलत है, लेकिन टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। या उससे भी बेटर होता है कि कोई भी गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। तो रूल होता है कि जितना नंबर हमसे पूछता है काउंट करने के लिए या जितना नंबर पूछता है उनके बीच में पता करने के लिए हम उससे ज्यादा कर देते हैं। यानी हम कितना कर देंगे 6 + 1 यानी कितना 7। इतना करने के बाद क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनके बीच में उतना आना ही आना है, उससे ज्यादा आएंगे लेकिन उससे कम कभी नहीं होंगे। मीन जितने भी हमें नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा करते हैं। तो 6 हमें चाहिए था 1 प्लस कर दिए कितना हो गया 7। और इसके भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे
इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 इंटू 7 15 इंटू 7 और 5 बाई 15 इंटू 7 और 5 रहेगा 21 और कितना रहेगा 105 35 105। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनके बीच में अगर देखा जाए कौन कौन आएगा 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, क्योंकि इनके बीच में चाहिए, ना तो इनको हम लेंगे और ना इसको लेंगे। 21 भी नहीं लेना और 35 भी नहीं, बस उनके बीच का लेना है। तो देखा जाए तो 22 से लेकर 34 तक जितने भी नंबर है सब उसके बीच में आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात, में कोई भी छह तुम ले सकते हो, कोई भी छह तुम ले सकते हो और आंसर किसी भी तरह गलत नहीं माना जाएगा। तो जब लिखोगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा 22/105, फिर 23/105, 24/105, 25/105, 26/105, 27/105। अगर स्टूडेंट कोई 28/105 लिखता है तो भी सही है, 34/105 लिखता है तो भी सही है। मतलब 21 और 35 के बीच में कोई भी ले सकते हो, बस ध्यान ये रखोगे कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा हर जगह, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर भी इक्वल किया है ताकि बस न्यूमरेटर हमें ध्यान देना पड़े, डिनोमिनेटर ना देना पड़े, वरना डिनोमिनेटर इक्वल नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। फिर से हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया था फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/3। 1/5 और 1/3 के बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए। सो पहला हमने ये बताया कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/3, फर्स्ट वी हैव टू मेक the denominator same for both the rational number. So we take the LCM. LCM of 5 and 3 is 50. It will become either here 3 here 5 means 3/15 5/50. इनके बीच का गैप सिर्फ 1 है, इनके बीच में 4 आ सकता है, जबकि चाहिए कितना 6। तो हमने कहा कि हम अपने अनुमान से, ठीक है, हम उसमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि जो भी रिक्वायर्ड नंबर है वो हमें मिल सके। लेकिन एग्जाम पीरियड में थोड़ा सा गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते हैं और क्लास 8 में भी पढ़ रहे हो तो उतना स्ट्रॉन्गर माइंड नहीं चलता होगा कि हम फटाक से डिसाइड कर लें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा सिंपली एक रूल अप्लाई करो, जो भी नंबर हमसे पूछता है जितना भी, उससे एक ज्यादा करो। तो 6 से एक ज्यादा कितना गया 7। अब दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसलिए करें ताकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहे या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर रहे। अब इसको करो 21/105, 35/105, डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। अब इनके बीच में 6 तो आ सकते हैं, क्योंकि 35 और 21 के बीच में 30 नंबर आते हैं, 21 को भी छोड़कर और 35 को छोड़कर। ध्यान रखना इनके बीच में पूछा है तो ना तो इसको लोगे ना ही इसको आप लोगे, इनके बीच का बस लोगे। क्लियर? और कोई इतना लेट किया, यह मैंने 6 लिखा। अब इसके बाद भी बहुत आते हैं 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, इनको भी लेकर तुम 6 बना सकते हो और उसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि नहीं यही आंसर सही होगा। मैंने कहा ना कि अगर कोई स्टूडेंट प्रोसीजर या मेथड सही रखता है और उसका आंसर डिफरेंट आता है दूसरे स्टूडेंट से, तो इसका कई मतलब नहीं बनता है कि उसने क्वेश्चन गलत किया है। क्लियर? Okay friends, so I hope you will understand how to calculate rational number between given rational numbers. जो भी मैंने इसमें क्या पढ़ा है कि रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड यू शुड सॉल्व द एक्सरसाइज। इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एक्सरसाइज, सो यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप और इन द YouTube channel, or you can comment on the YouTube channel chat box. Okay, thank you.